Good morning, Jai Shri Krishna. Today we are going to start the next question, that is question number 12. Let us start the question. P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. Balance sheet of their firm as on 31/3/2016 was given below. Okay. Then few adjustments are given. Now in the question, in the last adjustment, new profit and loss sharing ratio is given to you, that is 5:2:3. So old ratio is given and new ratio is given. Okay. So question number 12. P, Q, R. Old ratio is given to you. Old ratio is 3:2. So 3:2 is the old ratio. And new ratio is given to you. That is 5:2:3. Okay. Now you have to find the sacrifice ratio. So let us see. P. Sacrifice ratio formula is old minus new. Old ratio is 3. So 3 upon 3 plus 2, 5. Minus new. That is 5 upon 5 plus 2 plus 3, that is 10. 10 3s are 30. 5 5s are 25. Upon 5 10s are 50. That is nothing but 5 upon 50. You can minimize it. It will be 1 upon 10. Similarly, Q. Old ratio 2 upon 5. 2 upon 5 minus new 2 upon 10 is equal to 10 2s are 20. 5 2s are 10. 5 10s are 50. 20 minus 10, that is 10 upon 50. You minimize it, okay, you will get 2 upon 10. ठीक है? 5 2s are 5. और भी कट होता है लेकिन उसके अंदर रखो बिकॉज डिनोमिनेटर में दोनों सेम चाहिए. So what is the sacrifice ratio? Sacrifice ratio of P and Q is 1:2. This is your sacrifice ratio. Okay? Sacrifice ratio इसलिए फाइंड किया तो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है वो हम sacrifice ratio में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Okay, next. Now let us make the revaluation account. Revaluation account. Okay. Now, let us see the adjustment number 4. Value of land and building is 90,000. And the value of land and building in your book is 80,000. New value is 90 and old values in the book is 80,000. So 10,000 increase हो रहा है. So buy land and building 10,000. Then fifth adjustment, bad debt reserve is to be maintained at 5% of debtors. Bad debt reserve debtor का 5% होना चाहिए. आपका debtors देखो कितना है? 22,000 है. 22,000 का 5% 1100. So BDR होना चाहिए 1100, but BDR already बुक में कितना है? 2000 है. होना चाहिए 1100, बुक में 2000 रुपया, यानी बुक के अंदर आपने 9,200 रुपये ज्यादा लिखा है, तो उसे कम करना है. You have to reduce the BDR by 900. BDR is a liability. Liability कम हो रहा है तो क्रेडिट में बाय BDR 900. ओके, 2000 बुक में है और BDR नया है 1100. So you have to reduce the BDR by 900. तो इसलिए यहाँ पर BDR 900 लिख दिया. Next, value of stock is to be reduced by 400. स्टॉक का वैल्यू 400 आपको कम करना है. स्टॉक कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, so डेबिट में टू स्टॉक 400. Okay, then creditors of rupees 500 are to be paid. Creditors of rupees 500 are not to be paid. आपको creditors 500 पे नहीं करना है, यानी liability कम हो रहा है, तो obviously credit side बाय
creditors 500. Then okay, इतने adjustment है, difference निकालो. So you get 11,400 और difference आएगा to partners capital. 11,400 minus 400, that is 11,000. 11,000 को P और Q में बांट दो. What is the old ratio? 3:2. 11,000 को 3:2 में बांटो, you will get 6,600 and 4,400. Okay? And the revaluation account is over. Okay, next account बनाते हैं. That is partners capital account. So now we are making the capital account of the partner. Particular P, Q and R. Particular P, Q and R. So these are the three partners. Now partners capital account. सबसे पहले बैलेंस निकालो. बैलेंस brought down और brought forward, आप जो भी लिखो. देखो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ है 70,000 and 50,000. So write down 70,000 and 50,000. उसके बाद में बाय रिवोल्यूशन में आपको प्रॉफिट हुआ है, रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट है, उसे ट्रांसफर करो ऑपोजिट. तो बाय रिवोल्यूशन पहले में 6,600 और दूसरे में 4,400. उसके बाद बैलेंस शीट में देखो कुछ बांटने ऐसा है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी में देखो कोई रिजर्व कुछ नहीं. फंड है प्रोविडेंट फंड, लेकिन वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, वो लेबर का पैसा होता है, वर्कर का, वो आप नहीं बांट सकते. देन एसेट्स में गुडविल है, उसे राइट ऑफ कर दो. सो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल. ओके, टू गुडविल हाउ मच? 20,000. तो 20,000 को 3:2 में बांटो, यू गेट 12,000 and 8,000. उसके बाद में एडजस्टमेंट. आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन कैश. तो आर 60,000 कैपिटल आ रहा है कैश में, तो बाय कैश. और आर का कैपिटल 60,000. उसके बाद में दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000. फॉर्म का गुडविल 30,000 है. देन लिखा आर कैन नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. आर गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो आर का शेयर फाइंड कर लेते हैं. तो आर शेयर ऑफ गुडविल फॉर्म का गुडविल कितना है? 30,000. 30,000 इनटू व्हाट इज द शेयर ऑफ आर. न्यू रेशियो देखो, न्यू रेशियो में आर का शेयर दिया है 3. दैट इज 3/10. 0 कैंसिल, 3 3 9. सो 9,000 है. 9,000 को लेके नहीं आ रहा है, लेके नहीं आएगा तो उसे कैपिटल अकाउंट में से लेंगे. ओके, कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे और पी और क्यू को देंगे. लेकिन किस रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो. हमारा सेक्रीफाई रेशियो 1:2 है. ओके, सो बाय आर कैपिटल पी और क्यू में 9,000 को बांटना है, लेकिन किस रेशियो में? 1:2 में, बिकॉज द सेक्रीफाई रेशियो इज 1:2. ओके, सो 9,000 को 1:2 में, so 3,000 and 6,000. और इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट डेबिट में 2 पीस कैपिटल आर में 3,000. उसका बाद 2 क्यूज कैपिटल अगेन आर में 6,000. ओके
उसके बाद में देखो कोई एडजस्टमेंट है और कोई एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड नहीं, डिफरेंस निकालो, यू विल फाइंड द बैलेंस। $79,600, $60,400 and $60,000. So to balance get it out. 79,600 minus 12,000, you will get 67,600. 67,600. दूसरे का 60,400 minus 8, that is 52,400. And 60,000 minus 9,000, that is 51,000. Okay, और इसका भी टोटल लिख दो 79,600, 60,400 and 60,000. Okay, so this is your capital account. Now let us move to the balance sheet. कैश अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं बिकॉज कैश अकाउंट में खाली एक ही आइटम है 60,000 लेके आया वो हम बैलेंस शीट में डायरेक्टली लिख देंगे। सो लेट अस रब इट। Okay, now balance sheet. Liabilities, amount, assets, amount. Let us start with the liability. सबसे पहले कैपिटल P, Q and R. अभी हमने बैलेंस फाइंड किया था, सो P का बैलेंस आया था 67,600, then 52,400 and 51,000. ऐड करो 0 0 0 1 7, तो 1,71,000। ओके, उसके बाद में बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड है और क्रेडिटर्स है। सो प्रोविडेंट फंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज लिख दो 18,000। देन क्रेडिटर्स आपको बुक में दिया है 22,000, उसमें एडजस्टमेंट था क्रेडिटर्स 500 पे नहीं करना है, 22 minus 5 that is 21,500 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एसेट्स में लिखा लैंड एंड बिल्डिंग का न्यू वैल्यू 90,000 है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 90,000। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है डेटर्स, उसमें एडजस्टमेंट था और थोड़ा ध्यान से करना। डेटर्स 22,000 माइनस BDRs का 5% that is 1,100, you will get 20,900। ओके, डेटर्स के बाद में है स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है। भाई स्टॉक में 400 रुपीज कम हो गए, आपका स्टॉक दिया 36,000, 36 minus 400 that is 35,600। स्टॉक के बाद है कैश, आपका कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है? कैश में बैलेंस दिया 4,000 प्लस नया पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लेके आया, कितना लेके आया? 60,000, तो 60,000 रुपीज आया। 4 plus 60 that is 64,000। ओके,
कैश के बाद गुडविल अमाउंट में राइट ऑफ कर दिया और कुछ बचा नहीं है, फटाफट टोटल निकालो। So you get 2,10,500 2,10,500. Okay, so this is how you have to do. ठीक है? Okay, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाला क्वेश्चन हम करेंगे। Till then, goodbye.